Hi team, welcome to Army Boots. Welcome to the very first lecture of SSB series. Since it is the very first lecture, there are chances कि आप शायद बोर हो जाओ. अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो, स्क्रीन आउट हो, then you will be like कि ये सब हमको पहले से पता था. So it is a disclaimer that if you know about SSB already, there are chances that you may not find this lecture very interesting. But still, I'll request you कि हमारे साथ continue करें so that when we'll reach to psych, when we'll reach to IO, when we'll reach to GTO, you'll realize कि हर problem का एक अलग angle था. We'll tell you what is in the mind of GTO when he's testing you, what is in the mind of IO, and how will he interpret your answers to figure out if you're capable of joining the academy or not. And moreover, it is free, so there is no point in learning something. Lastly, why this series is important? It is because I wanted that in YouTube there should be a YouTube playlist where from 0 to infinity everything about SSB is covered. So without wasting much of your time, let's start this. Now सबसे पहले, what is SSB? So SSB stands for Service Selection Board, and we can see that very well here also. Now ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या है? Before getting into the academy for training, there is a board, there is a panel which will decide if you are capable of joining it or not. As simple as that. So suppose you want to join Army, Air Force, Navy or any of the defense forces, you'll apply for it. Either you'll give a written exam or you'll be shortlisted on the basis of your degree marks or your 11th 12th marks particularly. So on the grounds of your academic, you can be shortlisted directly for SSB or you can get it through the written examinations. In all, what I want to say is before the academy, this is the pre-final step. Clear? Now, how it is, suppose somebody wants to become an officer in army and he wants to join NDA. Now, it is a National Defense Academy which will be conducting exams. तो ये आपसे written exam करवाएगी. Before getting into academy, आपको इसका सामना करना पड़ता है. So SSB is not a test where a knowledge matters. दुनिया के बहुत सारे टेस्ट हैं जहाँ पर if you go for hard work, definitely you will make it. अगर कोई मेरे से पूछे कि is it possible for everyone to clear IIT JEE, I'll say yes. IIT looks for the amount of hard work you put in. To get into IIT, आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए. That's it. आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से किए हुए हैं, आपको बहुत अच्छा मैथ्स आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, यू नो एवरीथिंग, यू विल गेट इनटू इट. नहीं भी आता तो विद प्रैक्टिस आप सीख जाओगे. बट टू गेट इनटू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप क्लियर कर ही लोगे. क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट बेस्ड ओनली ऑन द नॉलेज, बट दे ऑल्सो टेस्ट यू ऑन फ्यू ग्राउंड्स, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू थिंक, हाउ यू एक्ट. और उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास SSB. क्लियर? सो नीचे कुछ डिटेल्स हैं. ये बहुत ऐसे नहीं कि बहुत सीक्रेट्स हैं, कहीं पर भी आपको ये डेटा मिल जाएगा. स्टिल आई अपलोड दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट, वाई SSB. अब ये SSB ज़रूरी क्यों है? डायरेक्टली क्यों नहीं हम पेपर दे के एयरफोर्स में चले जाते हैं, या बिना पेपर के क्यों नहीं चले जाते? सी दीज एंट्रीज, whatever entries we have NDA, CDAC, FCAT, TGC, SSC, NCC and I should write etc. क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और entries हैं जिनको यहाँ mention नहीं किया गया. Now these entries are just screening part. Suppose Air Force बोले हमें officers की ज़रूरत है, आप आ जाओ, तो क्या पता 1 करोड़ लोग आ जाए बनने के लिए. So just for the sake of screening कि कुछ लोग आए जिनका अच्छे से इंटरव्यू दिया जा सके. So this is just screening. So suppose you clear them. Now when you clear them, you will be faced by SSB boards. अब ये SSB बोर्ड क्या हुआ? अभी मैंने बताया एक पैनल होता है जो टेस्ट करता है whether you are capable of joining the forces or not. यहाँ पर होते हैं assessors. ये assessors क्या करते हैं? They test you. They simply check your psychology, your personality. So all in all, I can say SSB is a personality test. और इन एसेसर्स में हमारे पास कौन लोग आते हैं? मेनली हमारे GTOs, हमारे साइक और हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स. ये तीनों आपको अच्छे से जज करते हैं एंड देन दे डिसाइड वेदर टू recommend you
and whether to reject you. क्लियर? अगर कोई यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, सपोज ही फेल्स टू क्लियर द SSB, SSRs कहते हैं दिस पर्सन कैन नॉट ज्वाइन द आर्मी, मे बी ऑन सम ग्राउंड्स उन्होंने टेस्ट किया हुआ है. सो फॉर नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से यहाँ पर आना पड़ेगा, आपको दोबारा से एक रिटन एग्जाम देना है, दोबारा से उसको क्लियर करना है, दोबारा से SSB देनी है. प्लीज डोंट थिंक कि एक बार रिटन क्लियर कर लिया दैट यू आर कैपेबल एंड नेक्स्ट टाइम यू विल डायरेक्टली गो टू SSB. नो, इट इज़ नॉट. एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो फ्रॉम द स्टार्ट. ये क्लियर हो गया पहली बात हमको. नाउ व्हेन दे रिकमेंड, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, SSB डज नॉट रिकमेंड कैंडिडेट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज. आप समझो, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो और IMA में सपोज 70 सीट्स हैं. IMA में तो कॉलेज जैसा ही है, उसके सेमेस्टर चलते हैं, उनके पास सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं. तो SSB कभी ये नहीं देखेगा कि 70 लोग हैं तो हम 70 को ही रिकमेंड करें. नहीं, देयर रिकमेंडेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग. सपोज 100 बच्चे आते हैं और 100 के 100 लायक हैं हॉस्टल पढ़ने के, तो दे विल रिकमेंड 100 ऑफ देम. सपोज अगर 100 बच्चे फिर आते हैं और इनमें से एक भी उस लायक नहीं है कि एकेडमी में जा सके, वो 0 को रिकमेंड करेंगे. इसलिए तो कहते हैं आर्मी ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि जितने चाहिए उतने भी रिकमेंड नहीं हो पाते हैं. ऐसा गलत है क्योंकि मेरिट लिस्ट भी बनती है कभी कभी. सो पहले से जब चला आ रहा होगा शायद तब बहुत कम सीटें फिल होती होंगी. सो अब मैं ये बता रहा हूँ कि SSB किसी भी एंट्री का लास्ट स्टेप है. ऑफिसर बनने से पहले का अंतिम पग है हमारा, कि एक बार इसे क्लियर कर लिया, देन इस रिकमेंडेशन के बाद यू विल गो थ्रू मेडिकल्स एंड देन इनटू एकेडमी. ठीक. सो दिस इज व्हाई SSB इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनते हो यू विल बी इनटू लॉट ऑफ प्रेशर. आप लोगों पे डिसीजंस लेने के बहुत सारे क्या बोलते हैं जिम्मेदारियां रहेंगी, और वो सही से ले पाने की काबिलियत है कि नहीं वही SSB डिसाइड करेगा. एक ऑफिसर डायरेक्ट काम करने नहीं जाता है, वो गाइड करने जाता है. ही इज़ अ डिसीजन मेकर, ही इज़ अ पॉलिसी मेकर. आपके नीचे बहुत ट्रूप्स होंगे लोगों के, आपको उनको गाइड करना है, तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है. एक क्लास का एक मॉनिटर होता है, उसकी बात लोग मान लेते हैं ना. तो मे बी हर लड़का मॉनिटर बनने का लायक ना हो. अगर आप अपनी क्लास में देखो, इफ़ यू आर इन 11-12 और इवन इफ़ यू आर इन कॉलेज, हमारी क्लास में CR होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स. तो क्या पता हर किसी में वो काबिलियत ना हो कि ये CR नहीं बन सकता, ये मॉनिटर नहीं बन सकता. सो उस हिसाब से ये दे जज वेदर पर्सन इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद हाई प्रेशर और नॉट, एंड दैट्स व्हाई SSB इज इम्पॉर्टेंट. कोई भी आर्मी ऑफिसर कभी भी सुसाइड करता है, अगर वेरी रेयर चांसेस है कभी करेगा, बट इन केस he gets into trouble and he feels that situation is not according to him and he commits suicide, तो उसके सिलेक्शन पैनल पे इंक्वायरी बैठती है कि किसने इसको रिकमेंड किया था, किस बेसिस पे किया था. बिकॉज SSB विल चेक ना सुसाइडल टेंडेंसीज है कि नहीं, डिप्रेशन तो नहीं है इस बंदे को. सो दैट्स व्हाई SSB इम्पॉर्टेंट. इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज बट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज गुड इनफ टू गेट इनटू एकेडमी एंड बिकम एन ऑफिसर. अब बात करते चलो SSB क्यों इंपॉर्टेंट है, पता चल गया. अब इसके सेंटर्स कहाँ पर हैं. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एयरफोर्स देन हमारे पास एक सिलेक्शन सेंटर है देहरादून में. AFSB सिंपली मीन्स एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स. फिर एक है मैसूर में, एक है गांधीनगर गुजरात में, और एक है वाराणसी में. आई से दिस डेटा इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. आपको कोई ज़रूरत नहीं इन सबको याद करने की. आपके SSBs आएंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है. बट सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी, इतना आइडिया तो होना चाहिए कि कहाँ पर SSB आ सकती है, कहाँ पर नहीं आ सकती. ऐसा नहीं कि एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और फिर रो रहे हैं अरे यार मैसूर जाना है इतनी दूर. आपको पता था कि मैसूर आ सकता है ना. इट्स गुड. नेक्स्ट हमारे पास इंडियन आर्मी के लिए सिलेक्शन सेंटर्स हैं बैंगलोर, भोपाल, इलाहाबाद इज़ प्रयागराज नाउ. सो पर इलाहाबाद क्योंकि बहुत पुराने टाइम से नाम चल रहा है तो बहुत फेमस है, तो इसलिए इलाहाबाद लिखा हुआ है. एल्स आई वुड हैव एडिट इट टू प्रयागराज. और हमारे पास है पंजाब कपूरथला. इसमें कपूरथला वाला लेटेस्ट है. देखो, अगर आप लोगों की SSB आती है, AFSB, NSB कोई भी एंट्री आती है और आप शॉर्ट लिस्ट होते हो और आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है कि यार SSB में कपड़े कहाँ चेंज करूँ, रेलवे स्टेशन पे चेंज कर लूँ, घर से ही पहन के निकल जाऊँ, या सिलेक्शन सेंटर में जाके चेंज करूँ, और नहीं भी करूँ तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं उस चीज़ के. और जैसे कपूरथला है, यहाँ पर उनको ओयो नहीं मिल पाता स्टे करने के लिए, तो कहाँ रहना चाहिए. तो यहाँ पर एक स्टेट गुरुद्वारा है, वहाँ रहना चाहिए.
क्योंकि यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं जाती कपूरथला, सो यू हैव टू गो टू जलंधर, देन यू हैव टू टेक अ बस. सो आवर टीम विल हेल्प यू इन एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट. अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि सर मेरी SSB यहाँ आई है एंड आई एम फ्रेशर, आई हैव नो आइडिया हाउ टू गो, हाउ टू ट्रैवल, क्या क्या रखना है, क्या पैकिंग में होना चाहिए, यू सिंपली पिंग अस ऑन टेलीग्राम. We'll help you in every possible thing. In fact, there are other peoples in Telegram group who are repeaters, who are very good with their SSB preparation. Of course, they'll help you too. So I'm telling you, we are going to cover from zero to infinity everything. Next, we have naval selection boards. ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में है, हमारे पास बैंगलोर में भी है, भोपाल में भी है, विशाखापट्टनम में भी है और कोलकाता में भी है. तो मोस्टली नेवल बोर्ड्स आपको ऐसे भी दिख जाएंगे कि एक SSB सिलेक्शन सेंटर है, उसी के अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर बोर्ड को नेवी सिलेक्शन के लिए रखा हुआ है. लाइक ये जो भोपाल वाला है, यहाँ पर 33 बोर्ड सिंगल बोर्ड है, ये नेवी के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे नेवी का सिलेक्शन होता है. ठीक है. सो आपको सारे हमें पता चल गया SSB क्या होता है, हमें ये भी पता चल गया कि SSB सिलेक्शन सेंटर्स कहाँ हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक, अभी सिर्फ इतना ही. स्लोली वी गोइंग टू कवर एवरीथिंग. ऐसे एक दिन में सब बता दूंगा तो शायद थोड़ा इधर उधर हो जाए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग शुरुआत के पहले 2 लेक्चर आपको शायद बहुत इंटरेस्टिंग ना लगे, बट येस दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ फ्रेशर. कोई लड़का 11th में एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर आर्मी फ्रॉम नाउ, तो ही शुड नो ना व्हाट इज SSB. ये SSB वही चीज़ है जिसको ऋतिक रोशन लक्ष्य में कहता है, एक रिटन एग्जाम और एक छोटा सा इंटरव्यू, पास तो मैं हो जाऊंगा. तो जो छोटा सा इंटरव्यू है ना, वो SSB है. ऑल्दो बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है उस मूवी में SSB को, बट यस. नाउ डिफरेंस बिटवीन SSB, AFSB, NSB. कि सर अगर मेरे को SSB में क्लियर करना है तो क्या मुझे अलग तैयारी करनी है, AFSB, NSB में अलग करना है क्या कुछ, नेवी के लिए क्या पता अलग टेस्ट होता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. दे ऑल टेस्ट यू विद द सेम टेक्निक्स. सबके सब दे ऑल आर सेम. जैसे कहते हैं ना भगवान सबका मालिक है, ये सेम है. नाम अलग इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड अलग अलग एंट्रीज के लिए रिकमेंड करते हैं ना. एक आपको पायलट बनाता है, एक आर्मी ऑफिसर बनाता है, एक नेवल ऑफिसर बनवाता है. तो कुछ तो अलग होता होगा. हाँ, हल्के फुल्के माइनर टास्क. लाइक हमारे पास एक टास्क होता है SSB का, एक पार्ट है GTO, एंड इन GTO यू हैव लॉट मेनी टास्क लाइक लेक्चरेट एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, फाइनल ग्रुप टास्क, HGT, PGT एक्सेट्रा. तो हो सकता है एयरफोर्स में 1-2 टास्क स्किप कर दें, मे बी लेक्चरेट को हटा दें, मे बी GT का टाइम ऊपर नीचे कर दें, बट यू डोंट हैव टू वरी. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB, बाय डिफॉल्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AFSB and NSB. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NSB, बाय डिफॉल्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर 2. So their testing procedure is same. They all go through psych, interviewing officer and GTO thing. So all in all they are same. Don't worry कि एक को कर लिया तो दूसरे को नहीं कर पाएंगे. हाँ, बस AFSB में एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है हमारे पास PBT का. In this they check your controlling abilities. एक जॉयस्टिक दे देंगे and they will test you whether you are capable of keeping that control or not. So ये लाइफ में एक बार ही दे सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग कम्स नेचुरली. ऐसा नहीं हो सकता कोई ट्रेन करके खुद को इस लेवल पे बना ले कि वो कंट्रोल कर सकता है. सो वील टॉक अबाउट इट इन डिटेल, बट ऑल इन ऑल SSB, AFSB, NSB, their testing procedure is same. Their procedure is same. What procedure? The day wise procedure भी सेम होता है, पहले दिन सही, अगले दिन ये, अगले दिन ये. सो नॉट अ ह्यूज डिफरेंस. जो डिफरेंस 99.99 में और 100 में है, वही फर्क इनके स्केड्यूल में हो सकता है, पर टेस्टिंग प्रोसीजर इज 100% accurate with each other. Clear? So this is all about the very first lecture and I hope आपको हल्का सा आइडिया हो गया हो SSB क्या है और क्यों ज़रूरी है. And for every entry you have to go either 3 of them to become an officer. And yes, आप रिटन की तैयारी से पहले SSB की तैयारी शुरू कर दो, because it needs lot of time. देखो ना, सबसे पहले आप एक रिटन एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, मे बी NDA, CDS, whatever. तो ऐसा मत सोचो रिटन क्लियर हो जाएगा देन आई विल प्रिपेयर फॉर SSB. नो, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर SSB इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दिस रिटन, इफ यू क्लियर इट, probability is very less, but yes, if you put your hard work, you'll make through. You'll get a call for SSB. If you clear SSB, then of course you'll go for medicals. If you clear your medicals, then you'll go for academy. और अगर academy में आप पूरे साबुत एकदम ठीक ठाक बाहर आए, then you'll be commissioned as an officer.
तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे, रिकमेंडेशन एंड कमीशन। पर यहाँ पर चांसेस है ना, क्या पता रिटर्न ही निकला, चलो रिटर्न निकला तो क्या पता एसएसबी निकली, एसएसबी निकल गई तो क्या पता मेडिकल में कहीं रिजेक्ट हो गए, मेडिकल में रिजेक्ट हुए तो उसके सपोज मेडिकल क्लियर कर लिया, उसके बाद आप मेरिट में रह गए तो एकेडमी में नहीं जा पाए। मैंने भी कहा था ना एसएसबी आपको टेस्ट किस बेसिस में करता है, दे टेस्ट यू ऑन द नंबर ऑफ, दे टेस्ट यू सिंपली, और फिर आपका लक है कि आप उस 70 सीट में आ पाओगे नहीं आ पाओगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं, सपोज एसएसबी ने 120 लोग रिकमेंड कर दिए और सीट सिर्फ 70 थी, तो बाकी 50 क्या करेंगे, they'll again apply for SSB, and to apply for SSB they'll again go through this particular entry, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अटेम्प्ट में ही रिटर्न के साथ साथ SSB की भी तैयारी करें, क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं पर भी आके चूकते हैं SSB में, सो यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम अगेन, और फिर उस एग्ज़ाम की डेट भी 6 महीने 4 महीने आगे होगी, तो आपका एज फैक्टर भी आपको तंग कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे पहले एग्ज़ाम दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, आप ये भी तो सोचो आप कट ऑफ एज के आसपास हो, कुछ टाइम बाद आप बोलोगे ओ शिट मैं इंडिया का पेपर नहीं दे सकता, शिट मैं CDSE का ओवर एज हो चुका हूँ, देन यू विल गो फॉर अदर एंट्रीज। क्लियर, समझ में आया? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर SSB इवन बिफोर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन। सो दिस इज फॉर दिस लेक्चर, and with this I'll say thank you for everyone for watching this, and if you have any kind of doubt you can ask us either on the comment or on the Telegram group which we have just created for SSB aspirants. Thank you. जय हिंद, जय भारत।